On behalf of Central Zoo Authority, I welcome you to episode 14 of Zooming Conservation. Today, we have a special focus on enigmatic beautiful species, clouded leopards. This episode is particularly special as we celebrate International Clouded Leopards Day on 4th August 2024. Our expert guest today is Chiranjeev Degnath, project biologist at Sipai Jila Zoological Park. Chiranjeev holds master's degree in zoology from Tripura University and has dedicated past 10 years to the conservation breeding program of clouded leopards at Sipai Jila Zoological Park. In his role, he is responsible for overseeing the housing, feeding, breeding, and daily care of the captive clouded leopards. His dedication and expertise have significantly contributed to the successful breeding cap. Beyond his primary duties, he is also playing crucial role in hand rearing orphan zoo animals, including lion cubs, leopard cat kittens, jungle cat kittens, bear cubs, etc. His extensive experience and passion for wildlife conservation is a valuable asset to Supai Jila Zoological Park and the broader conservation community. His works ensure the survival and well-being of clouded leopards, contributing the preservation of this endangered species. Please join me in welcoming Chiranjeev Degnath to Zoom. It's an honor to have you with us today, and we'll to hear about your experience and insights about critical work that is done on conservation of clouded leopards. I'll just share the presentation. Is my presentation visible? Not yet, madam. Now? It's Hello? uploading. It's uploading. Oh. Yes, now it's visible. Okay. You can start. Okay. So thank you, Apurbaji, for the introduction. I would like to thank CZA for giving us the opportunity to present something on clouded leopard and its conservation efforts on the eve of International Clouded Leopard Day. So my presentation will be in both Hindi and English. Next slide, please. Is it visible? Second slide. No, it's not visible. Just a second. Yes. Now? Okay, so clouded leopard, I think it is the least studied species among all cats. The clouded leopard is named for the distinctive cloud-like pattern on its coat, which are elliptical spots with black edges and darker interiors than the rest of its pelt. The base of the fur is pale yellow to rich brown, which makes the darker markings stand out even more. Second slide, please. It may take some time to load as I am also Okay, understand. Yeah. Okay. Is it visible now? It's uploading. So sorry for the bad connectivity. My Wi-Fi just Here also in Sipai Jila also same situation.
Is it now? Uploading, still uploading. Yes, now it's visible. So this picture is from the conservation breeding program of Shivajala Zoological Park, and this is the breeding pair of our conservation breeding center. Here I'm showing this picture just to demonstrate their camouflage ability. See how good they are in camouflage. Though they are in enclosure, sometimes it's very difficult to locate them. जबकि हमको मालूम होता है कि ये स्पेसिमेन इसी के अंदर है, फिर भी it will take more than 15 to 20 minutes to locate them in a very small enclosure. Next slide, please. I'm just requesting, is my slide visible? Next slide is visible? No, no, it's not visible now. I think it will take time. It's a network issue. Just a second, okay? Yes. Now it's visible. Okay. Oh, no, the previous slide, ma'am. Yes, this one. So, no, the previous slide, previous one. Yes, this one. The clouded leopard was believed to be a single species till 2006, but जो recent studies वगैरह हुए हैं, now they have revealed that there are two different species of clouded leopard found in the world. The picture which I am showing in the slide on right portion, it's actually Neophilis DRD or Sunda clouded leopard or Borneo clouded leopard. They are mainly found along Sumatra and Borneo. And the picture that is showing on the left side of the slide, it's the mainland clouded leopard or Neophilis DRD. So today I will discuss about the Neophilis nebulosa, which is also called the mainland clouded leopard. Next. The visual difference is very clear. This is the worldwide geographical distribution of a clouded leopard, Neophilis nebulosa. Next. Is it visible? No. Uploading? No. Yeah, it's uploading, but not visible. It's not visible. Just a second. I'm sharing the presentation. She will Okay, share. now it's visible. Now it's visible. Oh. Okay. So these are the basic facts about a clouded leopard. We all know that based on body size, we can distinguish the cats in three different categories: big cat, lesser cat or small cat, and the third one is medium-sized cat. So clouded leopard comes under the category of medium-sized cat.
I think they are the only species of medium-sized cat found in India. They are highly arboreal, means they mainly prefer trees during daytime, and crepuscular. They are mostly active at dawn and dusk, but movements of and other activities have also recorded in nighttime also. There is no sexual dimorphism like other cat species. Generally, males are larger than females. It's only. Average lifespan is around 13 to 15 years in the captivity. In wild, it's around 11 to 12 years. Next slide. Physical features: body weight is around 11 to 20 kg. They have long tail, almost half of their body size. The purpose of this long tail is to make balance on treetops, as they are arboreal in nature. They have short limbs ताकि जो उनका center of gravity रहे वो नीचे रहे, so that they can make balance on treetops. They have largest canines in proportion to their body size. In proportion to their bodies. That's why they are also called modern day saber-tooth tiger. My sound is Voice is speaking. making echo. Yes. Okay. So they have largest canine comparative to other cat species found throughout the world, and that's why they are also compared with saber-tooth tiger, which is already extinct. Next slide, please. Why conservation breeding? In India, this species is restricted to Northeast India mainly. Their wild population, current wild population is unknown. We don't have any recent authentic data that how many clouded leopards are living in wild in India. I request participants to mute themselves. কেশব দা তুমি আনমিউট মিউট করো তোমার ইয়েটা মোবাইল থেকে। The latest publication of CZA on the start book of clouded leopard indicates that only 16 number of clouded leopards are remaining in Indian zoos, and out of which it's not 10, it will be 8 in Shipaizola Zoological Park, both off display and on display enclosure. Their legal status is Schedule 1 as per Wildlife Protection Act 1972, and it comes under the category of vulnerable species as per the IUCN, and their CITES status is Appendix 1. So these are the main reasons जिसकी वजह से ये species CZA has selected these species for conservation breeding program. Actually, CZA has made 26 species, a list of 26 species, जो कि different zoos में conservation breeding program चल रहा है, out of which we are running here 4 conservation breeding program on 4 different species, and the clouded leopard is one of them. Next. The Dadin Member Secretary CZA has visited Shipaizola Zoological Park in 2007 and selected an off-display area comprising an area of 16 hectares for the conservation breeding center of clouded leopard, including other 3 species. And then we have started the conservation breeding program
in 2010. Now we are the coordinating zoo as recognized by Central Zoo Authority, and the participating zoo for the conservation breeding program of clouded leopard is Guwahati. Next slide, please. Okay, I'll just ask my colleague to share the presentation. Okay. Natasha ma'am, can you share it? Yeah, I'm sharing. Yes. Slide number 10. Yes, this. So here I am showing few pictures of males and females that they don't have sexual dimorphism, only there is size difference. The first picture, figure number 1, is a male, and the second picture is female. So unless both the sexes are together, you cannot distinguish male and female. And males are generally larger and थोड़ा yellowish part उनमें coat में थोड़ा ज़्यादा रहता है, and females are almost same, but वो yellowish part उसमें थोड़ा कम होता है. And during breeding season, if the female is pregnant, then you can easily identify the female by the appearance of the abdomen. And the fourth picture is their canine, showing their canine, the largest canine species. Next slide. In wild, it is reported that they mainly feed on small mammals like monkeys, civet, and other bird species like pheasants and jungle fowls, etc. And in captivity, in Sipaijala Zoological Park, we mainly give them country fowl. Live country fowl we are giving in off-display enclosure, but in on-display we are giving them only dressed poultry, dressed country fowl. Occasionally, we also give them goat meat, and recently we have changed their feeding schedule to make it to give more variety to their feeding chart. We have also introduced duck meat and quail meat, and we are also planning to introduce rabbit, live rabbit. We are giving live country fowls to retain their hunting skill, as these species are housing here for conservation breeding program, and in future it will be released in wild. So retaining hunting skill is very important, and it will also help them to exercise. Next slide. So this is the inner side of the enclosure, their enclosure. It's actually an open top enclosure comprising an area of, we have actually 2 enclosure for 8 number of specimens. Sorry, 7 number of specimens in a conservation breeding center. So shortage तो है enclosures के यहाँ पर. As they are solitary, so you cannot keep them in groups. वो pair में ही रखना पड़ता है हर एक enclosure में. So we have 2 enclosure. The first enclosure is around 500 square meter total area, inside area, and the second one is much bigger than this. Is around 800 to I think 1000 square meter area. So as they are arboreal species, so there are trees for their arboreal movements, and we have also installed logs, artificial logs, natural logs for their arboreal movements. And
here we have a CCTV facility to monitor their day-to-day activities. Next. So this is a small chamber. We have again made a small chamber inside the main enclosure. As the species was observed very shy and become very stressed during breeding time, especially. So they need hiding place for breeding and for pasteurization. That's why we have made this small chamber. It's a open small chamber. They can easily use, and if they don't want, they can easily come out from this chamber. The area of this chamber is around 30 square meter, which is inside the main enclosure. It has been observed that during breeding season, they mostly prefer this small chamber for pasteurization. And also during daytime, when they don't want to be seen by anybody else, they mainly prefer this breeding chamber, these small chambers, to hide themselves during daytime. Next slide, please. So these are some enrichments we provide inside the small breeding chamber. This is hollow tree log. उनको बहुत पसंद है इस तरह के hollow tree logs और hidden places जहाँ पर वो ब्रीडिंग करते हैं और बर्थ वगैरह वहाँ पर होता रहता है. So these are the small enrichment facilities we are providing them in the enclosure. Next. So now talk about the breeding steps that we are following at Sipai Jala Zoological Park in the Conservation Breeding Center. So first step तो वही रहता है कि individual selection for pairing, वो compatibility issue रहता है, तो same age group का हम select करते हैं. Then we go for genetical analysis. We take blood sample and send it to Lakeman's and other laboratory like CCMB for heterozygosity test. वहाँ से अगर कुछ ऐसा मिल के result मिलता है कि they are vibrant and they can be paired with each other, then only we go for pairing. So हम directly pairing नहीं करते, as though they are very shy, but during breeding season, it has been observed not only in Sipai Jala Zoo but throughout the world that males become very aggressive towards female, and severe fighting is very common, especially during breeding season. As they are solitary, so throughout the year वो तो अलग ही रहता है, but during breeding season वो बहुत ही aggressive हो जाता है towards the female partner. So prior to keep them in the same enclosure together, we used to keep them in the same enclosure, but वो एक उसमें नेट का एक बैरियर रहता है, so that they cannot harm each other, but they can feel the presence of each other. वो olfactory और visual acclimatization उनका रहता है. After getting acclimatization period, after our getting they are acclimatized with each other, तो वो साइंस रहता है कुछ वगैरह के now they are acclimatized. वो एलोग्रूमिंग का इशू रहता है, वो पास आते हैं दोनों मेल फीमेल नेट के पास में और ग्रूमिंग करने का कोशिश करते रहते हैं. Then we release them in the second same enclosure, and उनका स्ट्रेस पीरियड रहता है 30 days का, और उनका वही पीरियड रहता है. ब्रीडिंग सीजन जो रहता है वो नवंबर टू मार्च तक रहता है मेनली, दो देयर आर रिकॉर्ड्स दैट थ्रू आउट द ईयर उनका ब्रीडिंग होता रहता है, लेकिन जो पीक ब्रीडिंग सीजन है वो नवंबर टू मार्च ही रहता है, मार्च और अप्रैल, नवंबर टू अप्रैल. नेक्स्ट. So this is the pregnancy and pasteurization. We have recorded around 90 days of gestation period, and the litter size is 1 to 5 as per literature, but in Sipai Jala Zoological Park we recorded 2 to 3. 2 number is more common, and this is the female just before the pasteurization. Next. So this is the current captive population of Sipai Jala Zoological Park Conservation Breeding Center.
We have started the program with 2 individuals. Then the survived specimens are 6 numbers. We have introduced 5 numbers clouded leopard during different times to avoid inbreeding or for different bloodline. A specimen died, total number 5, and total current population is number 7. Next. So this is different scenario. जो पहले वाला स्लाइड था उसमें सिर्फ कितना बच्चा सरवाइव हुआ वही शो किया हमने. Now we'll show you the actual scenario. Here is the data is from 2011 to 2022. Total birth जो हुआ है वो 13 birth हुआ है during this period. Neonatal death इनमें बहुत common है clouded leopards में. Not only in Chipazula but in other parts of the world जहाँ पर conservation breeding चल रहा है, जैसे कि स्मिथसोनियन नेशनल जू, नासविला जू, जहाँ पर बहुत ही अच्छा ब्रीडिंग प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ पर भी उनका न्यूनेटल डेथ होते हैं 0 डे से 30 डे का अंदर जो डेथ होता है उसको न्यूनेटल डेथ बोलते हैं. उस टाइम में उनका डेथ बहुत ज़्यादा होता है. दिस इज द मेन रीजन दैट वो कब सर्वाइव नहीं कर पाते. एंड मोर देन 50% cubs died, they cannot survive. So to counter this situation, next slide please. In order to avoid such unwanted situations, this is the first time. और उनमें बहुत कॉमन रहता है, जो न्यूनेटल डेथ में बहुत कॉमन रहता है, वो फिलियल कैनिबलिज्म. फिलियल कैनिबलिज्म मीन्स माँ या उसका जो फादर रहता है वही अपने बच्चे को खा लेता है. तो फादर को तो हम पहले अलग कर लेते हैं knowing that the female is pregnant. वो विजुअल डिफरेंस से मालूम चल जाता है. लेकिन कभी कभार ऐसा देखा गया है कि कभी कभी मेनी टाइम्स इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट माँ ही अपने बच्चे को खा लेती है. देयर आर मेनी रीजंस. स्ट्रेस तो एक काम करता है, दो इट्स इन द ऑब्वियस एंक्लोजर, बट as I said that this species is very shy and very elusive species. तो कुछ भी उनको स्ट्रेस इशू रहा हो, कुछ भी इशू ऐसा रहा हो, कभी कभार वो इंडिविजुअल इशू भी रहता है. हम लोगों को ऐसा फीमेल्स था पहले वहाँ पर हमारे कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम, बहुत अच्छा मदर था, लेकिन कैनिबलिज्म का कोई इशू नहीं था, लेकिन कब मोर्टेलिटी था. 2 लीटर 3 बच्चा हुआ या फिर 2 बच्चा हुआ तो 1 या 2 मर गया, सर्वाइव नहीं किया, और 1 या 2 सर्वाइव कर गए. अभी जो प्यार है इसमें बहुत इशू रहता है वो कैनिबलिज्म का. वो 2 बार अपने बच्चे को खा लिया, अपने ही बच्चे को खा लिया. 2 दिन का बच्चा था एक, और एक 4 दिन का बच्चा था, वो खा लिया. तो टू अवॉइड दिस सिचुएशन, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन 2022 हम लोगों ने हैंड रेयरिंग का सोचा, क्लाउडेड लेपर्ड के बेबी का. एंड थोड़ा वगैरह सर्च किया नेट वगैरह में और कुछ लिटरेचर पढ़ा कि कैसे करते हैं. और प्रीवियस एक्सपीरियंस भी था हम लोगों का यहाँ पर, जैसे कि लेपर्ड कैट, जंगल कैट और लायन का बेबी का हैंड रेयरिंग का. तो हम वी हैव टेकन द रिस्क, क्योंकि कुछ ऐसा कुछ वी हैव नो अदर ऑप्शन लेफ्ट. माँ के साथ रखेंगे तो फिर वो खा लेगा, चांसेस रहता है. तो दिस इज द फर्स्ट टाइम हम लोगों ने उसको अलग किया. 2 दिन का बच्चा था, तो 2 दिन के बाद, क्योंकि फर्स्ट 2 दिन हम लोगों ने माँ के साथ रखा और कोलोस्टम फीडिंग, ताकि वो इम्यूनिटी डेवलप कर सके. अदरवाइज आप लेके जाएंगे और उसको बड़ा कर लेंगे और 2-3 महीने के बाद वो मर जाएगा, कोई भी इशू होगा, माइनर कुछ डिजीज वगैरह होगा, तो क्योंकि इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगा उसमें. तो 2-3 इनिशियल डेज का कोलोस्टम फीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कैट इंक्लूडिंग क्लाउडेड लेपर्ड. और these are the prerequisites for hand rearing. Previous hands-on experience is most important. You cannot take risk with clouded leopard, especially when we have only 10 or 15 clouded leopards in captive condition. तो इसके साथ तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते. तो previous hands-on experience with other species, it's very important. Understanding of modern practice of hand rearing, कौन सा मिल्क चाहिए उनको, काउ मिल्क दे सकते कि नहीं, क्या फीड फॉर्मूला चाहिए, क्या फीड फॉर्मूला का कंपोजिशन रहता है, वो उस तरह का मॉडर्न प्रैक्टिस जितना भी होता है अदर जूज में, स्पेशली स्मिथसोनियन नेशनल जूज में, वो वहाँ पर बहुत अच्छा उनका ब्रीडिंग प्रोग्राम चल रहा है. और हैंड रेयरिंग में आई थिंक दे हैव मास्टर्ड. एंड
The next point is ethical understanding of hand rearing of captive animals and wild animals for display. Previous slide, please. For display and breeding for release. क्योंकि दो अलग ऑब्जेक्टिव रहता है. अगर जू एनिमल्स हो तो उनका ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि बच्चा बच जाए किसी तरह से और उनका जो हेल्थ हो वो ठीक हो जाए. दिस इज द प्राइम objective of hand rearing of zoo specimens, display specimens. But in case of conservation breeding specimens, उसमें थोड़ा एक नेगेटिव इशू रहता है कि ह्यूमन इम्प्रिंट का थोड़ा इशू रह जाता है. दैट वी कैन मैनेज इफ वी फॉलो द प्रॉपर मेथड. तो वो जितना कम कर सकते हैं और वो कोशिश रहता है ह्यूमन इम्प्रिंट वगैरह ताकि उसमें ना, क्योंकि दे हैव टू बी रिलीज्ड इन द वाइल्ड इन नियर फ्यूचर. और जो जू स्पेसिमेंस होते हैं उसमें ठीक उसका उल्टा होता है. जितना ह्यूमन इम्प्रिंट होगा वो उतना अच्छा होगा, क्योंकि ह्यूमन इम्प्रिंट अच्छा ज़्यादा होने से वो यूज टू हो जाता है ह्यूमन बीइंग के साथ. तो वो फ्यूचर में काम आता है. कैसे काम आता है कि आप उसको मेडिकेशन वगैरह करने में उसमें स्ट्रेस लेवल बहुत कम होता है. आप आसानी से ब्रीडिंग करा सकते हैं. अगर वो ब्रीडिंग करते हैं तो उनका जो बच्चा होता है उनका भी आप टेक केयर कर सकते हैं माँ के साथ में. और मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव में बहुत अच्छा रहता है. लेकिन हैंड रेयरिंग ऑफ कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम स्पेसिमेन इस डिफिकल्ट इसी वजह से, क्योंकि बाकी सब तो ठीक है लेकिन ह्यूमन इम्प्रिंट आने से फायदा है. आप वो अगर रिलीज ना करें वो स्पेसिमेन पर्टिकुलरली, अगर वही स्पेसिमेन आपको ब्रीडिंग के लिए ही रखना है कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम में, फिर तो ठीक है, फिर आप रख सकते हैं, उनका हैंड रेयरिंग कर सकते हैं. लेकिन वो स्पेसिमेन आप वाइल्ड में रिलीज नहीं कर सकते अगर वो ह्यूमन इम्प्रिंट उनमें आ जाए, डेवलप हो जाए और वो नहीं जाए बाद में, आप ना मतलब उसको आप एलिमिनेट ना कर सके. तो पॉजिटिव दिख भी है, उसका पॉजिटिव साइड भी है. अगर ह्यूमन इम्प्रिंट उसमें आ जाता है, यूज हो जाता है ह्यूमन बीइंग का, तो स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाता है. और स्ट्रेस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर कि इस तरह के कैट स्पीसीज कैप्टिविटी में ब्रीड नहीं करते. तो स्ट्रेस फैक्टर कम हो जाने से ब्रीडिंग अच्छा करेगा, लेकिन वो स्पेसिमेन आप वाइल्ड में रिलीज नहीं कर सकते अगर उसमें वो ह्यूमन इम्प्रिंट आ जाता है. एंड द नेक्स्ट पैरामीटर इज अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी फैसिलिटी एंड मटेरियल्स फॉर हैंड रेयरिंग. कुछ मॉडर्न इक्विपमेंट्स लगता है आपको हैंड रेयरिंग के, स्पेशली सच टाइप ऑफ फिशियस एनिमल, जैसे कि इंक्यूबेटर वगैरह, ब्रूडर वगैरह लगता है, डिह्यूमिडिफायर लगता है, फीडिंग इक्विपमेंट्स लगते हैं, और कुछ मिल्क पाउडर वगैरह स्पेशल टाइप का आता है वो लगता है. तो दीज आर द प्रीरिक्विजिट्स फॉर हैंड रेयरिंग ऑफ क्लाउडेड लेपर्ड. नेक्स्ट स्लाइड. तो जैसे कि बोला that it was decided that both the cubs will be handed by me, as I have previous experience of hand rearing of other lesser cat species and big cat species. And due to inability of suitable room at that time, one of my actually room was empty. We don't have cub hand rearing facility in our zoo. तो एक रूम मेरा खाली था, उसमें पूरा सेटअप बना के hand rearing facility बना के हम लोगों ने स्टार्ट किया था वो hand rearing. After 2 days of birth, on this is the date, on 7 April 2022, both the cubs have been separated from mother for hand rearing. CCTV monitoring facility हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिया था उस साइड में. Prohibited entry of outsiders, क्योंकि फर्स्ट टाइम हैंड रेयरिंग हो रहा है तो बहुत सारे जू स्टाफ्स भी देखने के लिए आते हैं, और अदर लोग हैं वो रिसर्चर्स वगैरह है वो देखने के लिए आते हैं. वो पूरा हम लोगों ने 2 महीने के लिए फुल्ली स्टॉप कर दिया. कोई भी नहीं आ सकता एक्सेप्ट मी एंड द वेटनरी ऑफिसर ऑफ शिपाईजला जूलॉजिकल पार्क. और रिमोट मॉनिटरिंग के लिए तो है ही, वो अगर कोई भी ऑफिसर वगैरह कुछ देखना चाहते हैं, मॉनिटरिंग करना चाहते हैं, तो हमारा वो सीसीटीवी फैसिलिटी है, वो बाहर से देख सकते हैं दूर से. नेक्स्ट. So this is the picture after separating the cubs for hand rearing. They were gently washed by wet tissue to remove dirt and fecal material from their body. Then both the cubs got well. तो ये 2 बच्चा था, मेल और फीमेल. फीमेल कब्स बहुत कम आते हैं लाइक अदर एनी कैट स्पीसीज. तो दिस इज द फर्स्ट टाइम वी got the first survived female cub at the conservation breeding center. Next. This is the
इंक्यूबेटर टेम्परेचर जो हमने सेट किया था अराउंड 90 डिग्री फ़ारेनहाइट था उस टाइम में, और ह्यूमिडिटी बहुत हाई था यहाँ पर, क्योंकि वो उस टाइम अप्रैल में बहुत बारिश हो रहा था, तो हम लोगों ने डिह्यूमिडिफायर यूज़ किया और ह्यूमिडिटी अराउंड 55 to 65 रखा, which is standard for their rearing. Next. So this is the rearing procedure. Initial incubator temperature was 82 to 95 degree Fahrenheit for first week. Cub removed from incubator after 1.5 month. वो हम डेली उनका वेट चेक करते रहते हैं, क्योंकि जो फीड फॉर्मूला रहता है वो आप अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी वेट होता है 15 to 20% ऑफ देयर बॉडी वेट। तो हर दिन बॉडी वेट चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चेकिंग बॉडी टेम्परेचर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बॉडी टेम्परेचर लो हो तो मील स्किप करना पड़ता है, फीडिंग स्किप करना पड़ता है, क्योंकि अगर लो टेम्परेचर में आप फीड कराएंगे तो लो टेम्परेचर में एंजाइम एक्टिविटी बहुत कम होता है, तो वो उसके इंडाइजेशन का बहुत इशू रहेगा उस टाइम। तो इट्स वेरी रिस्की ड्यूरिंग द फर्स्ट 1 to 2 वीक। तो टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, हम एनल बॉडी टेम्परेचर चेक करते रहते हैं। वो अगर वो रेंज इस रेंज में रहा 96 to 99 तभी हम फीड कराते हैं, या फिर वो इंक्यूबेटर में डाल के वो एडजस्ट करके बॉडी टेम्परेचर फिर फीड कराया जाता। चेक गम्स फॉर पिंक कलर। वो डिहाइड्रेशन का बहुत इशू रहता है कोई भी कैट स्पीसीज में, अगर प्रॉपर फीडिंग ड्यूरेशन मेंटेन ना किया जाए तो वो देखना पड़ता है गम वगैरह। वो अगर पील है या फिर थोड़ा ऐसे वाइटिश कलर का है, इट मीन्स दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम डिहाइड्रेशन। तो कुछ ओरल ऐसे रिहाइड्रेशन के लिए उसको दिया जाता है, पेडिलाइट वगैरह, तो उसके बाद ही हम नेक्स्ट फीडिंग कराते हैं। चेक हाइड्रेशन, पुल द स्किन जेंटली ऑफ स्कफ ऑफ नेक शुड बाउंस बैक इन हाइड्रेशन इज एडिक्वेट। ये एक दूसरा टेक्निक है, जो उनका नेक का स्किन है वो ऐसे पुल करेंगे, तो उसके बाद छोड़ने के बाद अगर वो तुरंत ही नीचे चला जाए तो मीन्स दैट दे आर ओके। अगर वो जाने में देरी हो या फिर ना जाए तो मीन्स दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट। Feed appropriate amount of formula. Place twice the amount to be feed in bottle to avoid cub sucking air. उसमें कोई भी कैट स्पीसीज हो, स्पेशली लेसर कैट्स और मीडियम साइज कैट में एस्पिरेशन न्यूमोनिया बहुत कॉमन है। दे डोंट हैव दैट गैग रिफ्लेक्स। कुछ भी अगर उसके एयरवेज में चला जाए ना, तो वो उनमें वो नहीं है, वो टेंडेंसी नहीं है, एबिलिटी नहीं है वो उसको निकाल सके। तो वो क्या होता है कि वो डायरेक्टली पानी हो या फिर मिल्क फॉर्मूला कुछ भी हो, वो डायरेक्टली उनके एयरवेज में चला जाएगा और लंग में चला जाएगा, और एक बार लंग में गया तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा एंड न्यूमोनिया इज कन्फर्म। न्यूमोनिया कन्फर्म होने के बाद सर्वाइवल रेट बहुत कम है, ऑलमोस्ट जीरो, क्योंकि यंग एज होता है, 2 to 3 days 7 days 1 week के बच्चा होता है, तो उस टाइम में तो सर्वाइवल रेट न्यूमोनिया डेवलप होने के बाद बहुत इशू रहता है। तो अराउंड 3 months तक तो बॉटल फीडिंग चलता है अलॉन्ग विथ मीट। तो उस टाइम में नियर अबाउट 600 टाइम आई हैव कैलकुलेटेड दैट 600 टाइम आपको बॉटल फीडिंग कराना पड़ता है। और 600 टाइम में अगर एक भी बार गलती हो गया, स्पेशली ड्यूरिंग द अर्ली एजेस, वो 3 वीक तक, तो वो बहुत फेटल होता है उनके लिए। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हैंड रेयरिंग में, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हैंड रेयरिंग में, ताकि वो एस्पिरेशन उनका ना हो, वो जो मिल्क फॉर्मूला है वो प्रॉपरली आप दे सके उनको, वो उनके एयरवेज में ना जाए किसी भी हालत में। कीप द कप अपराइट विथ हेड रेज्ड ड्यूरिंग फीडिंग सो दैट दे डू नॉट एस्पिरेट फॉर्मूला। वही आप सीधा बैठा के उसको फीड कराना पड़ता है। हम ह्यूमन बेबीज को जैसे उल्टा करके फीड कराते हैं, इस तरह का फीडिंग नहीं चलता कोई भी कैट स्पीसीज में। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड ऑलवेज व्हाइल बॉटल फीडिंग। A single incidence of aspirating formula can be fatal. After each feeding, stimulate to urinate and defecate by rubbing cotton balls on anogenital area. क्योंकि क्या होता है कि वो अपने आप यूरिनेशन और डेफिकेशन नहीं कर पाते अप टू फर्स्ट 3 weeks। जो माँ होती है, मदर होती है, वो लीक करते रहती है वो एनोजेनिटल एरिया, एनास और जेनिटल का एरिया को एनोजेनिटल एरिया बोलते हैं। उस एरिया को वो लीक करते रहते हैं, स्टिमुलेट करता रहता है, और उसी स्टिमुलेशन की वजह से वो जो कब होते हैं वो यूरिनेट करते हैं, डेफिकेशन करता है। और ये आपको हर फीडिंग के पहले और बाद में दोनों टाइम करना पड़ता है, ये आप मिस नहीं कर सकते।
Next slide, please. Food and feeding procedure that we have followed. हम लोगों ने एक जो मिल्क फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया वो है KMR किटन मिल्क रिप्लेसर. वो डिफरेंट कंपनीज का आता है. मैं शो करूंगा आपको कौन कौन सा मिल्क फॉर्मूला अवेलेबल है और क्या ऑप्शंस है आपके पास. सो दिस इज द फर्स्ट डे फीडिंग हम लोगों ने पेडिलाइट ऑफर किया था और 5% डेक्सट्रोज या दे सकते हो. हम लोगों ने शायद 5% डेक्सट्रोज यूज किया था उस टाइम में. वो दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं. इट्स एक्चुअली BFR बॉडी फ्लूइड रिप्लेसर. आप माँ के पास थे, कितना टाइम पहले फीड किया मालूम नहीं, तो ये प्रिकॉशन है. आप 5% डेक्सट्रोज फीड कराइए और जितना भी उनका बॉडी फ्लूइड निकल गया हो, डिहाइड्रेशन का इशू हो, वो उसमें से ठीक हो जाता है. तो फर्स्ट फीडिंग इज ऑब्वियसली ऑलवेज 5% डेक्सट्रोज. डे 1 to 3 में ऑफर करते हैं हम KMR. 3:1 का रेशियो रहता है फर्स्ट 3 to 4 डेज तक. उसमें 1% रहता है मिल्क पाउडर और 3% रहता है वाटर. वाटर भी आप डिस्टिल वाटर यूज करेंगे तो अच्छा रहता है, या फिर गुड क्वालिटी ऑफ कोई भी टेप वाटर यूज कर सकते हैं अगर डिस्टिल वाटर नहीं है तो. डिस्टिल वाटर इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो मिल्क फॉर्मूला में जितने भी आयरन्स वगैरह होते हैं, जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिएंट्स होता है, वो एक स्टैंडर्ड में होता है. तो आप ज़्यादा आयरन रिच फीड पानी लेंगे या फिर दूसरा उसमें कुछ रहता है तो उसमें न्यूट्रिशन का कुछ इशू हो सकता है. तो डिस्टिल वाटर लेने से वो अच्छा रहता है. एंड ग्रेजुअल इंक्रीज रेशियो टू 2 parts डिस्टिल वाटर टू 1 part powdered KMR. इन जनरल carbs it around 15 to 20% of body weight per day. Day 1 to 14 carbs it every 3 hours 7 times per day. Day 14 to 21 carbs it every 4 hours और 6 टाइम पर डे. ये आपको फीड कराना, ये आप स्किप नहीं कर सकते. हर 4 to 6 आवर्स में आपको डे 14 से डे 21 तक आपको फीड कराना है. वीक 3 carbs eat every 4 hours or 5 times per day. Next slide. These are the milk options that we have in the market. The first picture is Patek KMR. वो आपको थोड़ा चेक करना पड़ता है जो उनका कंपोजिशन है मिल्क फॉर्मूला का, क्योंकि कैट मिल्क में क्या होता है कि प्रोटीन और फैट बहुत हायर रहता है एंड दे आर वेरी इंटॉलरेंट टुवर्ड्स लैक्टोज इंटॉलरेंस उनमें बहुत कॉमन रहता है कैट्स में. सो इट्स बेटर टू नॉट गिव देम रेगुलर काउ मिल्क, क्योंकि उसमें लैक्टोज इंटॉलरेंस का इशू रहेगा और इंडाइजेशन होगा और मरने का डेथ का चांसेस बहुत हाई रहता है इसमें. द बेस्ट ऑप्शन इज KMR किटन मिल्क रिप्लेसर. ये इंडिया में अवेलेबल है, इम्पोर्टेड है. इंडिया में इसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता, बाहर से आता है. तो KMR में 2 ऑप्शन है. एक है पेटेक KMR, पेटेक कंपनी का KMR आता है, और एक पेटलेक कंपनी का KMR आता है. हम लोगों ने दोनों यूज किया डिफरेंट स्पीशीज में एंड वी हैव ऑब्जर्व दैट दो द पेटेक KMR इज बिट कॉस्टली, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि उसमें प्रोटीन कंटेंट और फैट कंटेंट, फूड प्रोटीन और फैट जो रहता है ना, वो ऑलमोस्ट सिमिलर टू द मदर मिल्क कंपोजिशन. और पेटलेक में क्या होता है कि उसमें प्रोटीन कंटेंट थोड़ा कम रहता है कंपेयर टू पेटेक KMR. इफ यू डोंट हैव दिस मिल्क फॉर्मूला इन योर लोकेलिटी और आप उसको मैनेज नहीं कर सकते, दो दे आर वेरी कॉमन, अमेजोन में मिल जाता है, अमेजोन इंडिया में साइट्स में, तो आप ट्राई कर सकते हैं रॉयल कैनाइन बेबी डॉग मिल्क फॉर्मूला. ये भी अच्छा है, लेकिन इसमें वो न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी रहता है लॉन्ग टर्म यूज करने में. तो अगर इसको ही यूज करना है बेबी डॉग फॉर्मूला को, तो इसमें आपको ऐड करना पड़ता है, उसमें आप कैल्शियम पाउडर ऐड करना पड़ता है, विटामिन D3 अलॉन्ग विद विटामिन D3, क्योंकि विटामिन D3 के बिना कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो वो आपको ऐड करना पड़ता है. प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक ऐड करना पड़ता है. पेटेक KMR में प्रोबायोटिक वो आ जाता है, एक साथ ही आ जाता है, प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक. और आपको रॉयल कैनाइन अगर यूज करते हैं तो प्रोबायोटिक आपको यूज करना है. इसमें हम लोगों ने शायद टफरो यूज किया था प्रोबायोटिक्स में. एंड द फोर्थ ऑप्शन इज गोट मिल्क. गोट मिल्क भी कभी कभार यूज किया जाता है, लेकिन बेस्ट वही है जो अवेलेबल है ऑनलाइन. आप लेके रख सकते हैं अपने जूज में, कोई भी स्पीसीज हो, बिग कैट वगैरह हो,
तो लेसर कैट हो स्मॉल कैट हो आप इसको यूज करते हैं। पेटेक केमर इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। उसमें दो फॉर्म आता है, एक लिक्विड फॉर्म में आता है, एक पाउडर फॉर्म में आता है। तो कोशिश कीजिए वो पाउडर फॉर्म में आप रखें, क्योंकि लिक्विड फॉर्म, क्योंकि आप अगर एक ही लेसर कैट है ना बच्चा, वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये रहता है कि आप बच्चा एक है या दो है और आपने वो उसका कैप ओपन कर लिया तो ज़्यादा दिन तक वो अच्छा नहीं रहता, वो डिग्रेड हो जाता है अगर लिक्विड हो। तो पाउडर फॉर्म में रहने से वो इशू नहीं होता उनमें। तो बेस्ट रहता है पाउडर फॉर्म कैट KMR। और बिग कैट वगैरह हो तो उसमें आप 1 वीक के बाद हार्ड बॉइल्ड एग योक जो होता है वो आप यूज कर सकते हैं एक साथ, टू इंक्रीज द फैट एंड प्रोटीन कंटेंट। क्योंकि बिग कैट्स में जैसे लायंस वगैरह में वो थोड़ा ज़्यादा रहता है फैट कंटेंट उनकी मदर मिल्क में। नेक्स्ट स्लाइड। सो cubs eat every 5 hours और 4 टाइम पर डे। 4th वीक में, 5th वीक, 6th वीक और 8th वीक में हम लोगों ने ट्राई किया था फर्स्ट टाइम पारबॉइल्ड मीट। पारबॉइल्ड मीट मतलब हॉट वाटर में बोनलेस मीट को हम लोगों ने 1 मिनट या 2 मिनट तक डिप करके रखा था, ताकि वो सरफेस लेवल का जो भी पैरासाइट वगैरह हो और थोड़ा बहुत भी बॉइल्ड हो जाए तो डाइजेशन में अच्छा रहता है। तो वो फर्स्ट फीडिंग था मीट का उन लोगों का। अराउंड 75 और 70 डेज में हम लोगों ने वो फर्स्ट फीडिंग दिया था मीट का। And cubs were entirely off bottle by 15th week and started feeding on a meat-based diet. तो 15th week तक उनका वीनिंग हो जाता है। उससे पहले फ्रॉम 8th वीक हम लोगों ने मीट और बोतल बोतल मिल्क दोनों ही एक साथ कंटिन्यू किया था। नेक्स्ट। So this is the picture of syringe feeding. There are two ways. आप बोतल फीडिंग भी करा सकते हैं, सिरिंज फीडिंग भी करा सकते हैं, लेकिन सिरिंज फीडिंग वाज फाउंड मोर सुटेबल फॉर न्यूबॉर्न, स्पेशली 1 day 2 days। उसमें क्या होता है कि आप जो प्रेशर होता है ना, वो मिल्क का प्रेशर वो आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने हाथ से, तो एस्पिरेशन का इशू नहीं रहता उसमें। तो ये 2 दिन का बच्चा था, हम लोगों ने फर्स्ट फीडिंग कराया था उसको, तो सिरिंज फीडिंग किया था उसमें से। नेक्स्ट। एंड ये बोतल फीडिंग है। बोतल फीडिंग भी आप कर सकते हैं, तो लेकिन बोतल फीडिंग और सिरिंज फीडिंग में इशू ये है कि सिरिंज तो आपको मिल जाएगा, और लेकिन जो उसमें जो निपल है वो सिरिंज के साथ नहीं आता, वो अलग से खरीदना पड़ता है। वो डिफरेंट तरह के निपल्स आते हैं, वो आपको थोड़ा एडजस्ट करने खरीदना पड़ेगा, और उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कौन सा निपल वो आपके नीडल के टिप पे अच्छी तरह से बैठता है। तो वो थोड़ा देखना पड़ता है, लेकिन ली मिल जाएगा आपको। बोतल ऑनलाइन मिल जाता है, बोतल कोई भी कैट स्पीसीज का आपको मिल जाएगा बोतल भी। लेकिन बोतल आफ्टर 15 डेज में रिकमेंड करता हूँ कि 15 डेज के बाद ही यूज़ करने से अच्छा रहता है। उससे पहले 1 day 2 days बच्चे के लिए सिरिंज फीडिंग इज बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट। ये पारबॉइल्ड मीट हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, वही बच्चा है। तो शायद 70 डेज या फिर 75 डेज में हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ट्राई किया। उस टाइम में उनका मीट भी हम कंटिन्यू किए 75 डेज के बाद, और उनका बोतल फीडिंग भी कंटिन्यू। नेक्स्ट। एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ both the cubs at the age of 3 months. Next. And this is the steps of cub development. Weight of the male and female cubs are 374 gram and 287 gram respectively when separated from mother at the age of 2 days for hand rearing. Eyes were closed and ears were folded at that time. Eyes started opening at the age of 10 to 12 days. Ear folds started opening at the age of 2 weeks and completed at the age of 4th week. Started walking at the age of 20 days और 21 days, 3 week के बाद वो अपना चलने का उनका चालू हो जाता है। Started climbing on objects at the age of 4th week. Canine started emerging at the age of 3rd week. Started chewing behavior at the age of 6th week. Next. और ये उनका बॉडी ग्रोथ का एक ग्राफ है फॉर मेल एंड फीमेल। जो रेड line है, this red line is indicating the female,
एंड मेल इज द ब्लू। तो मेल का थोड़ा ज़्यादा रहता है उनका ग्रोथ, ये वीक वाइज है अप टू 3 मंथ्स तक उनका बॉडी ग्रोथ कैसे रहा है 3 मंथ तक। नेक्स्ट। So there are many challenges that we are facing in Shipajala Zoological Park for the conservation breeding, but I think these are the two major challenges we are facing. एक तो ये है कि न्यूनेटल डेथ उनमें बहुत ज़्यादा रहता है। ये कई रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे, क्योंकि टिल नाउ इंडिया में जितने भी जूस है सिर्फ शिपाईजला जू में ही इसका ब्रीडिंग हुआ है। और शिपाईजला जू में आप अगर हिस्ट्री चेक करेंगे नियर अबाउट 50 स्पेसिमेंस थे अब तक, 50 और 55 अराउंड, उसमें से सिर्फ 3 ही ऐसे पेयर थे जिसने ब्रीडिंग किया है। ऐसा नहीं कि कोई भी मेल फीमेल आप एक साथ रखेंगे क्लाउडेड लेपर्ड और 2 ब्रीड करेंगे, वो मेटिंग का रहता है, वो मेटिंग कर लेंगे, लेकिन कंसीव कभी नहीं होता है। और आप रिकॉर्ड मैंने चेक किया तो देखा कि ओनली 3 स्पेसिमेन जितनी भी अभी है ना, बच्चा वगैरह इंडिविजुअल जो भी है, वो सारे के सारे 3 स्पेसिमेंस आए। और वाइल्ड पॉपुलेशन तो फाउंडर पॉपुलेशन अभी कुछ भी नहीं है, सबके सब कैप्टिव बॉर्न या इधर जू बॉर्न और सीबीसी बॉर्न। तो शायद इनब्रीडिंग का कुछ इशू हो सकता है उसमें, क्योंकि वो बहुत पहले का था इशू। तो पॉपुलेशन साइज बहुत छोटा है और कब मॉर्टलिटी उसमें बहुत हाई है। नॉट ओनली इन शिपाईजला जू, देयर आर अदर जूज जहाँ पर, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि स्मिथसोनियन नेशनल जू और नासविला जू, जहाँ पर बहुत अच्छा उनका कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम और हैंड डेयरिंग चल रहा है, वहाँ पर भी कब मॉर्टलिटी बहुत हाई एंड इट्स रिपोर्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इसको काउंटर हम कर सकते हैं इजीली बाय हैंड डेयरिंग प्रैक्टिस, बाय प्रैक्टिसिंग हैंड डेयरिंग ऑप्शन। लेकिन वो ह्यूमन इम्प्रिंट वो उस चेक करना पड़ता है वो ना आए। और आफ्टर 3 मंथ्स जब हम उनको केज में रिलीज करते हैं, उसके बाद वो पूरा प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो ह्यूमन इम्प्रिंट जो जितना भी डेवलप हो उसमें, वो धीरे धीरे चला जाए, वो कर सकते हैं आप। वो हम क्या क्या करते हैं यहाँ पर कि ह्यूमन इम्प्रिंट उसमें कैसे डेवलप होता है कि मान लीजिए मैंने उसको पाला है ना, तो किसी और ने नहीं पाला, तो मैं उसको मीट करना छोड़ देता हूँ आफ्टर 3 मंथ्स। और ऐसा नहीं कि मैंने उसको पाला तो दूसरे जितने भी कीपर्स से या फिर दूसरे जितने भी स्टाफ से वो उनसे भी थोड़ा फ्रेंडली हो जाता है, ऐसा नहीं। वो सिर्फ अपने केयर टेकर से ही फ्रेंडली होता है। तो मैं क्या करता हूँ, जो आफ्टर 3 मंथ्स जब हम उनको रिलीज करते हैं वाइल्ड में फ्रॉम माई कब रेयरिंग फैसिलिटी, तो उसके बाद से वो मीटिंग हम लोगों का मीटिंग हम कर देते हैं। मैं मीट नहीं करता हूँ, जो कीपर्स वगैरह वहाँ पर है जू कीपर्स, वो लोग उनको फीड कराते हैं, टेक केयर करता है। और धीरे धीरे वो इंटरेक्शन कम होता जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली यह है ज़्यादा लोग भी वहाँ पर नहीं आते, वो धीरे धीरे उसमें हो जाता है, कोई इशू नहीं रहता है। हाँ, लेकिन वो कोशिश करते हैं हम कि वो डेवलप ना हो ह्यूमन इम्प्रिंट उसमें से। इसका गुड साइड और बैड साइड दोनों ही है, मैंने जैसे कि बोला। ह्यूमन इम्प्रिंट डेवलप होने से अच्छा भी है ब्रीडिंग के लिए और नहीं भी अच्छा है वाइल्ड में रिलीज करने के लिए। एंड द सेकंड मेजर इशू वी आर फेसिंग इज अनअवेलेबिलिटी ऑफ ब्रीडिंग स्पेसिमेंस। उसमें 2 इशू है। एक तो स्पेसिमेंस ही नहीं है, थ्रू आउट हम लोगों ने बहुत ट्राई किया दूसरे जूज में, ब्रीडिंग स्पेसिमेंस नहीं है ब्रीडिंग एज का इंडियन जूज में। ओनली ऑप्शन वी हैव दैट वी हैव टू टेक इट फ्रॉम आउटसाइड, जैसे कि थाईलैंड वगैरह में और सिंगापुर जूज में है, और अदर ऐसे ब्रीडिंग फैसिलिटी जो कि बाहर दूसरे जूज में है, जैसे स्मिथसोनियन जू, तो वहाँ से लाना पड़ेगा। वाइल्ड कैप्चर मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वाइल्ड कैप्चर में 2 इशू है। एक इशू को तो हम एड्रेस कर सकते हैं क्योंकि वाइल्ड से आप ऐसे ब्रीडिंग के लिए नहीं ले सकते, लेकिन देयर इज ए प्रोविजन दैट यू कैन कैप्चर वाइल्ड स्पेसिमेन फॉर कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम। बाकी इशू ये है कि मिलता ही नहीं। लास्ट 20 ईयर्स में 15 ईयर्स में कोई साइटिंग का रिपोर्ट, डायरेक्ट साइटिंग का कोई एविडेंस नहीं है त्रिपुरा में। और नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा जहाँ पर पॉपुलेशन है वो मिजोरम में या मिजोरम में। तो मिजोरम में भी लास्ट 2-3 ईयर्स में 2 या 3 शायद साइटिंग हुआ है, तो लास्ट 3 ईयर्स में। तो वो इशू रहता है और जूज में तो नहीं है।
तो वही इशू है। और अगर मिल भी जाता है पेयर मेल फीमेल, तो जैसे कि मैंने बोला कि हम लोगों ने कई ऐसे ब्रीडिंग स्पेसिमेन एक साथ रखे, नियर अबाउट 55 स्पेसिमेंस थे सिपाहीजला जू में, लेकिन 3 ही ऐसे पेयर थे जिनने इंक्लूडिंग अभी जो है वो लेके 4 होगा, 4 ही ऐसे पेयर है जिसने ब्रीडिंग किया है। तो वही इशू रहता है उसमें, उनके जो स्पाम का जो मोटिलिटी रहता है, इट इज बीन स्टडीड दैट उनका स्पाम मोटिलिटी बहुत लो रहता है मेल्स में। तो इसी वजह से शायद वो कंसीव नहीं कर पाते उसमें, और वो इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर रहता है, ऐसा नहीं कि ऐसे ओव्यूलेशन हो जाता है उसमें। तो राइट टाइम में मेल फीमेल का इंटरेक्शन इस टेस्ट पीरियड में, वो भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है उसका कंजर्वेशन ब्रीडिंग। I think this is the last slide. I have one video, small video on the hand rearing practice for clouded leopard that we are doing at Shipaizala Zoo. Apurva ji, if you can kindly play the video. Natasha ma'am, if the video is there, can we play the video? Or else we can go to questions and then we can play the video. Yeah, just give me a minute. Okay, then we can take questions till then. Yes. From participants, are there any questions regarding conservation breeding program of clouded leopards? You can raise your hand or and unmute yourself. Or you can write it in chat box. My chat box is not open actually. If you can kindly read the question. I will read it. I will read it if there are any Okay, questions. then it will be easy for me. Till then, I'll take some questions. I will just keep my video off because of the network issue. Yeah. So how many cats, like how many species of cats have you handbred? Till now, I have handed lion, leopard, jungle cat, clouded leopard, so 4 species till now I have handled. Cat species. There are other species of bears and other species that I have handled, but cat species is 4 species. Okay. And how was your experience like with all different species? I have faced difficulties in handling in lesser cats. वही इशू जो हमने बोला पहले कि उनमें एस्पिरेशन का बहुत इशू रहता है, स्पेशली अगर वो माँ ने अबंडन कर दिया 3-4 घंटा हो गया तो डिहाइड्रेशन का इशू रहता है उसमें। तो वैसे ही बहुत बहुत छोटा होता है स्पेसिमेन, 1 दिन का 2 दिन का बच्चा, वो तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। बिग कैट्स में बहुत इजी है, उनका जो हैंडलिंग है बहुत इजी है कंपेरेटिव टू मीडियम साइज कैट और लेसर कैट। वो हम लोगों ने 4 बच्चा दिया था एक बार, उसमें से 2 बच्चा माँ के पास ही मर गया, तो बाकी 2 का कंडीशन बहुत खराब था, मरने की हालत पर था। तो वो दोनों को हम लोगों ने अलग कर दिया था। फॉर्चुनेटली बोथ हैव सर्वाइव्ड। तो बिग कैट्स में बहुत इजी है और अच्छा भी लगता है उसका हैंडलिंग, लेकिन लेसर कैट्स में बहुत प्रॉब्लम होता है, उनका फीडिंग ड्यूरेशन भी ज़्यादा होता है, बहुत फ्रीक्वेंट रहता है। तो और सिंगल हैंडली मैं इसको हैंडलिंग करता हूँ, तो पूरा सोने का तो कुछ भी नहीं होता, नींद वगैरह कुछ भी नहीं रहता हार्डली 1 मंथ तक। तो वही। और मैं सजेस्ट करता हूँ कोई भी अगर हैंडलिंग करता है तो वो सिंगल हैंडली का है, क्योंकि डिफरेंट हैंड्स होने में क्या होता है कि फीडिंग प्रोसेस में थोड़ा गड़बड़ होने से, कुछ भी गड़बड़ होने से ना, अगर आप मिल्क बना रहे हैं तो आप जानते हैं क्या प्रोपोर्शन रहता है, और दूसरे ने कुछ भी उसमें चेंजेस कर दिया तो वो इंडाइजेशन हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज रहते हैं, इसीलिए सिंगल हैंडेडली करने से उस तरह के इश्यूज नहीं आते। So we have one chat. Excellent presentation and efforts made by Mr. Chiranjeev and other biologists. So someone is Thank GD Adam. I'm not able to get your name, but he's appreciating your efforts for the conservation. थैंक यू। Are there any more questions regarding hand rearing of smaller cats?
if any zoo is facing any problems, they can Yes, ask. अगर कोई भी इशू हो तो अभी भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर बाद में भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग हैंड रेडिंग ऑफ कैट्स एंड अदर स्पीशीज। कोई कुछ भी मटेरियल्स वगैरह, मिल्क फॉर्मूला, कुछ भी, एनी इशू कैन डिस्कस। What are all the measures viral diseases mainly affecting the clouded leopards and how to prevent those diseases? Kindly tell us. Escape. I think our veterinary officer is there. I don't know whether he is there or not. He'll be the best person to answer this. Viral disease तो इसमें अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं देखा, लेकिन उसमें जो यहाँ पर होते हैं वो टिक बोर्न डिजीज बहुत होते हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में रीजन में। बेबीशियसिस, आर्लीशियसिस वगैरह बहुत कॉमन है। टिक फीवर बहुत कॉमन है। टिक का बहुत इशू रहता है यहाँ पर। हम लोग जब वो बच्चे को सेपरेट करते हैं मदर से तो उसमें फुल ऑफ टिक रहता है। वो आप मैन्युअली नहीं निकाल सकते, क्योंकि मैन्युअली अगर टिक को आप निकालेंगे, हंड्रेड्स ऑफ टिक्स आर देयर एक बच्चे में, तो वो टॉक्सिन छोड़ देता है। तो उसी टॉक्सिन की वजह से बच्चे को बहुत पेन होता है। कभी कभार वो टेम्परेचर राइज हो जाता है और उनको फीवर आ जाता है। तो एक ऑइंटमेंट आता है, वो आपको अलाउ करता अप्लाई करना है टिक्स में, या फिर आप बेसलिन भी यूज कर सकते हैं। तो वो क्या करता है कि वो रेस्पिरेशन नहीं, सांस नहीं ले पाता वो टिक्स वगैरह, तो तब वो अपने आप ही वो छोड़ देता है वो बाइट साइड को। तो मैनुअल रिमूवल इज नॉट प्रेस्क्राइब टिक्स का, तो वो इशू रहता है टिक इशू का। और रेगुलर वैक्सीनेशन वगैरह तो डॉक्टर साहब करते हैं, वो एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं है। वो मैं आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर क्या वायरल डिजीज रहता है उसमें। लेकिन अभी तक हैंड रेडिंग फैसिलिटी में मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। जो एक दो केसेस था वो एस्पिरेशन का था, वो लेपर्ड कैट में हम लोगों ने पाया है एस्पिरेशन निमोनिया का, बहुत पहले का था। उसके बाद तो सच नो फेटलिटी कुछ ऐसा। Okay. Sahil Rajak is asking, as Sipahi Zoo is in Tripura, so does climate help in breeding of clouded leopards as compared to other zoos locations in India? So, sorry, I did not get the question. So he's asking if, Yes. as Sipahi is located in Tripura, does the climatic condition of Sipahi helps in? Yes, yes, yes. एकदम एकदम, क्योंकि दिस स्पीसीज एक्चुअली द नॉर्थ ईस्टर स्पीसीज, तो ये नॉर्थ ईस्ट से ही बिलोंग करता है। एंड फॉर्चुनेटली the only national park, clouded national park in India, is situated inside the Sipajala Zoological Wildlife Sanctuary. So the Sipajala Zoological Park is part of actually three component. First, it's a wildlife sanctuary, 18.53 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल एरिया है। उसमें दो फिर अलग कंपोनेंट है सिपाहीजला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। एक ही सिपाहीजला जूलॉजिकल पार्क, 68 हेक्टेयर का एरिया है, और उसमें से 68 में से है 16 हेक्टेयर का कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम, और उसी के साइड में है 5.08 स्क्वायर किलोमीटर का क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, जो कि बहुत छोटा है लेकिन एक नेशनल पार्क है। और हिस्टोरिकल पॉपुलेशन यहाँ पर है, अभी भी है क्लाउडेड लेपर्ड, दो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट देम ड्यू टू देयर nocturnal behavior and shy nature, or as it is native to this region। तो इस तरह का क्लाइमेटिक कंडीशन, रेनफॉल, टेम्परेचर, सब कुछ जो है यहाँ पर, फॉरेस्ट कवर, सब मिला के इसमें ब्रीडिंग में बहुत हेल्प करता है। और जो हमारा जो जू है ना, यहाँ पर जो जितनी भी मैंने जो एक पिक्चर शो किया था एंक्लोजर का, इसमें जितना भी वेजिटेशन है, हम लोगों ने कुछ भी यहाँ पर प्लांटेशन नहीं किया, वो नेचुरल फॉरेस्ट है। नेचुरल फॉरेस्ट में हम लोगों ने जस्ट ऐसे बैरिकेड लगा के एंक्लोजर बना दिया। तो एक्चुअली दे आर स्टेइंग इनसाइड देयर ओन टेरिटरी, हैबिटेट। So we have a video ready. We'll play the Yes. video and then we'll take all the Okay. remaining Other questions. question. Yes, yes. Ma'am, can you play the video? Yeah.
why are they named as Zulekha and what was second name? अंतरीप. एक्चुअली हाउस नेम तो देना पड़ता है कोई भी जो स्पेसिमेंस हो वगैरह. तो 2022 में जब उनका ब्रीडिंग हुआ तो सेम डे आज ही के दिन था इंटरनेशनल क्लाउडेड लेपर्ड पे. हम लोगों ने एक अच्छा प्रोग्राम रखा था. तो लोकल एमएलए आए थे तो उन्होंने ये नाम रखा. कुछ चिरकुट वगैरह थे कई नाम का तो उन्होंने एक ऐसे सिलेक्ट पिक किया फॉर मेल एंड फॉर फीमेल. तो वही नाम आया अंतरीप एंड जुलेखा. Okay. So we have another question. What are all those management measures for deworming and prevention of intestinal parasites, and with the accurate dosage and duration? So if you have your doctor, you can ask. नहीं, दिस क्वेश्चन आई कैन आंसर. जो हमारे यहाँ पर होते हैं डिवॉर्मिंग जो शेड्यूल होता है वो एवरी 3 months में होता है फॉर ऑल कैट्स इंक्लूडिंग क्लाउडेड लेपर्ड. तो वो हम थ्रू फीड देते हैं. जैसे कि मैंने पिक्चर में दिखाया था प्रेजेंटेशन में दैट वी आर मेनली गिविंग लाइफ कंट्री फाउल टू रिटेन देयर हंटिंग स्किल. लेकिन जब हम मेडिकेशन वगैरह देते हैं तब हमको वो ड्रेस्ड देना पड़ता है पोल्ट्री कंट्री फाउल. क्या करते हैं हम उसको काट के इसको स्किनिंग करके जो मीट का पीसेस होते हैं उसमें वो जो टैबलेट्स वगैरह होते हैं वो या फिर कुछ भी ऐसा लिक्विड मेडिसिन हो उसको क्रश करके या फिर उसके साथ उसमें दे के मिला के फिर फीड कराते हैं. तो एज पर बॉडी वेट तो जब फीड कराते हैं तब आप मेल फीमेल को एक साथ नहीं दे सकते फीडिंग. ऐसे तो हम एक साथ ही देते हैं लाइफ कंट्रीब्यूट. लेकिन उसमें मेडिकेशन के टाइम में वो अगर कम ज़्यादा होगा तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाता है. तो उस टाइम को आपको अलग रखना पड़ता है मेल फीमेल. तो ये हर 3 months में होता है डिवॉर्मिंग. और प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स में जैसे कि कोई पैरासाइट्स वगैरह ना हो हम एक 2 शेड्यूल फॉलो करते हैं. एक है पीरियडिकल बर्निंग और फ्लेमिंग ऑफ एनक्लोजर. जैसे गैस बर्नर लेके जितने भी आयरन स्ट्रक्चर हो या वुडन स्ट्रक्चर हो या सीमेंट स्ट्रक्चर हो तो वो हम फ्लेमिंग के द्वारा हम उसको बर्न करते हैं. ये डिपेंड करता है कौन सा सीजन है. ऑफ सीजन में जैसे कि विंटर सीजन मानसून वगैरह गर्मी में समर्स में तो उस टाइम में ज़्यादा नहीं लगता. तो मानसून्स में या फिर विंटर्स में वो टिक का इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा रहता है. तो उसमें हर मंथ ये करना पड़ता है. मंथली ये होता है. और टिक स्प्रे एंटी टिक स्प्रे हम यूज़ करते हैं फॉर एनक्लोजर ग्राउंड फ्लोर में यूज़ करते हैं. उस टाइम में 15 days तक उसका इफेक्ट रहता है टिक स्प्रे का. तो एज इट इज़ ए केमिकल तो उस टाइम हम उसको पैडॉक एरिया में नहीं छोड़ते. तो 15 days तक वो क्रॉल एरिया में रहता है. उसके बाद ही हम उसको पैडॉक एरिया में छोड़ते हैं और फिर पैडॉक क्रॉल में हम एंटीटिक स्प्रे डालते हैं. तो ये ऑल्टरनेट में होता है. एंड अगर ये देखा जाता है कि वो स्पेसिमेन में टिक आ जाए और बहुत ज़्यादा है तो हम स्पॉट ऑन यूज़ करते हैं. यहाँ पर ये वन काइंड ऑफ एंटीटिक लिक्विड होता है स्प्रे होता है. वो बहुत इफेक्टिव है. वो मंथली यूज़ करना पड़ता है ड्यूरिंग पीक टिक इन्फेस्टेशन पीरियड. तो इस तरह का प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स हम लेते हैं. और हम जो फूड बाथ होते हैं हर एक एंक्लोजर्स में इंक्लूडिंग द एंट्री गेट ऑफ कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर हम पोटाशियम परमैंगनेट का KMnO4 का एक्सेलरेशन रहता है. उसमें हम अपना पैड डिप करके जाते हैं ताकि वो बाथ का कोई पैथोजेंस वगैरह उसमें अंदर ना जाए. एंड लाइमिंग करते रहते हैं. और जो टॉप कवर रहता है एंक्लोजर्स का वो हम पीरियडिकली चेंज करते रहते हैं. जैसे कि लीफ लिटर वगैरह जम जाता है तो उसमें फंगस ग्रोथ होने का चांसेस रहता है. तो ये ईयरली किया जाता है एक बार. और अगर ज़्यादा इन्फेस्टेशन है टिक का फिर बर्निंग किया जाता है ग्राउंड फ्लोर में या फिर लाइमिंग करते हैं हम. तो दीज आर द प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स वी आर टेकिंग एट कंजर्वेशन ब्रीडिंग साइट. Okay. And Sahil is asking, how is the survival rate and breeding of clouded leopard and other zoo of different parts of the country due to change in temperature and humidity? They can survive in normal environmental condition or have to provide specific temperature controlled facility. Yes, during early days up to 30 days just after birth they cannot regulate their body temperature like other any kind of cat species. So better to keep them in brooder जिसमें आपका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल रहे. उसमें टेम्परेचर कंट्रोल उसमें थर्मोस्टेट रहना पड़ता है क्योंकि आप हाथ से तो नहीं कर सकते हर टाइम. तो उसमें थर्मोस्टेट फैसिलिटी रहना चाहिए वो ब्रूडर में. तो वो तो आपको चाहिए क्योंकि माँ के पास अगर रहता है तो माँ ही अपने बच्चे को ऐसे अपने बॉडी के साथ ऐसे लगा के रखते हैं. तो वो टेम्परेचर कंट्रोल माँ अपने साथ कर लेता है इसी.
और वो जब आप लेके आते हैं तब वो आप नहीं कर पाते, तो उसके लिए आपको इंक्यूबेटर में उसको रखना ही है आपको फर्स्ट 4th वीक बर्थ के बाद। तो ये आपको करना है। और सर्वाइवल रेट इट डिपेंड्स कि आप कौन सा प्रोसेस फॉलो करते हैं। अगर आप कन्वेंशनल लेयरिंग प्रोसेस फॉलो करते हैं जो कि माँ के साथ ही है, उसमें सर्वाइवल रेट बहुत कम है, नॉट ओनली इन सिपाही जू, इन मेनी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जितने भी कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर या ब्रीडिंग फार्म्स वगैरह है, तो बहुत अच्छा सर्वाइवल रेट देखा गया है कि हैंड रेयरिंग जहाँ पर प्रैक्टिस होता है, इंक्लूडिंग सिपाही जू, जब हम लोगों ने ट्राई किया तो देखा अरे ये तो 100% सक्सेसफुल रहता है। 2 बच्चा लाए थे हैंड रेयरिंग के लिए, दोनों सर्वाइव कर गए। और दिस इज द फर्स्ट टाइम हम लोगों ने फीमेल बच्चा को सर्वाइव किया। उससे पहले 2010 से अब तक सारे के सारे मेल बच्चे, जितने भी मारा गया है बच्चा, ज्यादातर मेल थे और कुछ फीमेल थे। कुछ कोई भी माँ के साथ बड़ा हुआ ऐसा कोई फीमेल हमारे पास पहले नहीं था कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर में आफ्टर 2010। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम हम लोगों ने फीमेल बच्चा को सर्वाइव करा है ऐसे। तो ये तो हैंड राइडिंग फैसिलिटी में बहुत अच्छा आप इंटरवीन कर सकते हैं, कोई भी इशू उसमें बच्चे भी कुछ भी आप चेक कर सकते हैं, रेगुलर मॉनिटरिंग, बॉडी टेम्परेचर ठीक है नहीं, हाइड्रेशन ठीक है कि नहीं, जो कि माँ के पास थोड़ा मुश्किल है, माँ तो आपको अलाउ नहीं करेंगे। और माँ का ऑब्जर्वेशन भी हर टाइम सही नहीं रहता, तो वो इशू रहता है माँ के पास में। और एंक्लोजर्स में वो अदर प्रेडेटर्स रहते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह रहते हैं, कुछ भी बहुत इशू रहता है। सो और फिलियल कैनिबलिज्म, जो कि मैंने बोला कि माँ ही अपने बच्चे को खा लेती है, जो कि कैट स्पीसीज में तो बहुत कॉमन है, लेकिन क्लाउडेड लेपर्ड में सबसे बहुत ज्यादा ये देखा जाता है कि अपने बच्चे को खा लेती है माँ ही अपने बच्चे को, ड्यू टू स्ट्रेस एंड अदर इश्यूज। तो सर्वाइवल रेट ऑब्वियसली हैंड रेयरिंग फैसिलिटी में बहुत अच्छा है। और ये आपको देखना पड़ता है कि आप एटलीस्ट 2-3 दिन तक आप माँ के पास इसको रखें, ताकि वो कोलेस्ट्रॉल फीडिंग हो जाए। नहीं तो आप बच्चा बच जाएगा आपके पास 2-3 महीना, उसके बाद मर जाएगा, क्योंकि वो उनका जो इम्यूनिटी डेवलप जो कि अर्ली स्टेज में होना था वो नहीं होगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल फीडिंग उसको नहीं किया गया। तो वो आपको थोड़ा प्रॉपर प्लानिंग करके आप करेंगे तो हैंड रेयरिंग फैसिलिटी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर एनी काइंड ऑफ कैट स्पीसीज। Okay, but the question was mainly for adult specimens कि adults को भी climate controlled नहीं नहीं area नहीं चाहिए। नहीं नहीं, एडल्ट को कुछ भी क्लाइमेट कंट्रोल एरिया नहीं चाहिए। वो आप वो जहाँ पर जो स्पीसीज मिलता है वो उसका आप क्लाइमेटिक कंडीशन देख लीजिए, जैसे कि दिस स्पीसीज इज फाउंड मेनली नॉर्थ ईस्ट इंडिया। वो टेम्परेचर रेंज जितना रहता है, हमारे यहाँ पर 10 डिग्री से नीचे नहीं आता टेम्परेचर। हाँ, तो ऊपर नहीं जाता, 40 डिग्री से ऊपर नहीं जाता नॉर्मली। तो उस तरह की रेंज जहाँ पर है वो सर्वाइव कर जाएगा मेल्स, सॉरी एडल्ट इंडिविजुअल। और ह्यूमिडिटी को कोई इशू नहीं, ह्यूमिडिटी ज़्यादा या कम होने से एडल्ट्स में कोई कोई इशू नहीं है। हाँ, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने से जो पैरासाइट्स वगैरह है, अदर इंसेक्ट्स वगैरह, वो डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन सच वो मेल सॉरी एडल्ट इंडिविजुअल में ऐसा कोई इशू नहीं है। और टेम्परेचर का तो बोला ही, वो इस तरह का टेम्परेचर रेंज वो फ्लक्चुएट वो इजीली टॉलरेट कर सकते हैं। Okay. Are there any more questions from participants? Or else we can proceed for vote of thanks. I don't think there are any more questions. Can I proceed with the vote of thanks now? Okay. Ladies and gentlemen, as we conclude for this enlightening episode of Zooming Conservation, I would like to extend a heartfelt vote of thanks to our esteemed guest, Chiranjeev Devnath. So your dedication towards the conservation of clouded leopards and wildlife is truly inspiring. You have extensive experience and passion not only contributed to the success of conservation breeding program at Safai Jilla, but also have played significant role in raising awareness and fostering deeper appreciation for the management of these animals. To audience, I hope you found this session both informative and motivating. This work being done by Chiranjeev and his team at Safai Jilla is the testament to the power of dedication and expertise in the wildlife conservation. Once again, thank you, sir. Thank you, Chiranjeev, for your remarkable session. Thank you for calling me, and thank you CZA for giving us the opportunity once again. Thank you. To everyone, I request to keep joining and showing your participation in all our zooming conservation sessions to know more about zooming conservation, to know about the species conservation on ground. Thank you.